Let me give you brief summary of the lesson. Central character in the lesson is Matilda. She's a young girl. वो एक युवा बालिका थी and she was born in a family of a clerk. उसका जन्म भी हुआ था family of a clerk and then later on she got married also to a clerk. बुक में कहा गया है it was error of destiny. समझिए इस टर्म को. उसका मानना था, ऑथर का मानना था कि ये error of destiny है. Destiny means भाग्य, नसीब. यह मानो भाग का दोष था, गलती था कि उसका जन्म क्लर्क के फैमिली में हुआ. एंड लेटर ऑन शी मैरिड टू अ क्लर्क ऑल्सो. ऐसा क्यों कहा गया है कि भाग का दोष था? बिकॉज शी ऑलवेज एस्पायर्ड टू हैव अ लग्जरियस लाइफ. हर समय वो लग्जरी की कल्पना में खोई रहती थी. उसका मानना था दैट हर लाइफ इज टू एंजॉय, हर लाइफ इज टू लिव अ प्रीमियम लाइफ. उसका जीवन का उद्देश्य ही है कि वह प्रीमियम लाइफ जिए. ये किसका साइकोलॉजी था? मटिल्डा का. सो व्हेन शी वाज मैरिड टू अ क्लर्क they could not afford to have a luxurious life. वे लोग luxurious life afford नहीं कर सकते थे because he was simple clerk. Author says that they were not poor. वे लोग गरीब भी नहीं थे. They were very simple family. कुछ कमी नहीं था फैमिली में. But she was not at all happy with her life. वो अपने जीवन में बिल्कुल खुश नहीं थी. So as I told you, Matilda desired to have a luxurious life. And she felt irritated. हर समय झल्लाहट का स्वभाव उसका बन गया था. She was not at all happy in her life. She always complained about poor house, having shabby walls, जिसमें गंदा वॉल है. एक मिडिल क्लास फैमिली घर कैसा होता है? नॉर्मल होता है. And she always desired to have good dresses, lots of jewelry, which made her sad. और ये सब उसके जीवन में था नहीं. And that made her disappointed, that made her sad. And one day what happens? Her husband brings an invitation card of a premium party hosted by minister. It was invitation to a ball. Ball is a party where couple dance. Apart from having good food, couple dance there, they enjoy there. That is a ball party. जिस पार्टी में डांस हो, कपल डांस करे, जोरा डांस करे, उसको बॉल पार्टी कहते हैं. किसी तरह से मैनेज करके ये इनविटेशन कार्ड लाया. कौन? मिस्टर लॉयसन. थिंकिंग दैट हिज वाइफ वुड बी वेरी एक्साइटेड. यह सोच करके कि इसकी वाइफ काफी एक्साइटेड हो जाएगी, खुश हो जाएगी. बट कंट्ररी हैपेंस. ठीक विपरीत होता है. शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी. शी थ्रोज द इनविटेशन कार्ड एंड टेल्स हिम दैट बेटर यू गिव टू any of your colleague. दोस्त को दे दो. whose wife is better suited for this party. जिसकी वाइफ के पास ज्वेलरी हो, अच्छा ड्रेस हो, उसको दे दो. and she started crying also. वह रोना शुरू भी कर दी. so what was her complaint? that she doesn't have suitable dress. पहले ड्रेस की बात. she was not having pretty dress to wear for the occasion. तो उद्देश्य क्या था कि she wanted admiration and attention of all the people. सबका ध्यान आकृष्ट करना उसका ख्वाब था. सब एडमायर करे उसे. इसके लिए उसको प्रिटी ड्रेस चाहिए. So her husband was very lovable, very kind. So he had saved 400 francs to buy a rifle for shooting. He had a hobby to pursue his hobby of shooting, especially bird lark. लार्क बर्ड का शूटिंग करने का शौक था उसको. एंड ही गेव दैट मनी टू हिज वाइफ एंड टोल्ड हर बेटर शी बाय अ प्रिटी ड्रेस. वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच्ड. वो पार्टी का जो है वीक, सप्ताह अप्रोच कर गया. जैसे जैसे पार्टी का समय अप्रोच किया, उसकी वाइफ फिर से चिंतित हो गई, एंशियस. फिर से मुंह लटका ली वो. अब प्रॉब्लम क्या था? She hadn't any matching jewelry for the occasion that would match her dress. Her husband came up with a plan. एक योजना बताया कि better you wear some flowers. इस पर और झल्ला गई वो. तब सलाह दिया कि better you borrow expensive jewelry from your wealthy friend. अपने wealthy friend से तुम borrow कर लो. Tilda, she went to her wealthy friend's house and she borrowed a expensive jewelry. Sparkling necklace
that is diamond necklace. And that party was success, great success for her. She was able to draw everyone's attention towards her. सबका अटेंशन लेने में वो सक्षम रही, सबका अटेंशन लेने में कामयाबी उसे मिला, उसे खुशी मिली कि सबका ध्यान हम आकृष्ट किए. पीपल एडमायर्ड मी. बट अचानक क्या होता है? सी लीव्स द पार्टी एट द वी आर मीन्स मॉर्निंग में ही 3-4 बजे पार्टी छोड़कर चली गई. वो भागने लगी. वो पार्टी का समय सुबह 6 बजे 7 बजे तक चलना स्वाभाविक है, नेचुरल है बड़े बड़े शहरों में. उसका उद्देश्य चलने का क्या था? पीपल वुड नॉट कम टू नो हर रियलिटी. क्योंकि बाहर जब साथ निकलेगी तो उसका रियलिटी एक्सपोज हो जाएगा. यस और नो? बिकॉज शी वुड हायर अ कैब that would not suit to her image, because she had portrayed herself a great wealthy lady in the party. So जब घर पहुंचती है वो तो देखती है कि necklace was missing. Necklace जो है that was not around her neck. So they thought that it might have fallen in the cab. They took to reach home. जिससे वो घर पहुंची उस कैब में गिर गया होगा. Also Matilda's husband searched on the street. पूरे रास्ता में सर्च किया जा करके. On the way they had come through. रास्ते से आया था. Moreover, इसके अलावा he approached the police. उस नेकलेस को पाने के लिए वो अप्रोच की, पुलिस को अप्रोच किया. वो एडवर्टीजमेंट दिया कि भाई आपको इनाम मिलेगा. Those who would return the necklace, find the necklace. He also went to cabs union office. But all in vain. सब व्यर्थ. तो रिटर्न करने में दिक्कत हो रहा था, लेट हो रहा था. तो उसका हस्बैंड जो है सलाह दिया उसको कि बेटर यू राइट अ लेटर. तुम एक पत्र लिख दो. किसको? जेन फॉरेस्टियर को. राइट अ लेटर एंड टेल हर दैट द क्लास्प, जो हुक होता है, दैट हैज बीन ब्रोकन, वो टूट गया है. एंड नेकलेस दे हैव सेंट टू रिपेयर. इट विल टेक टाइम. एक बहाना था, तब तक ये लोग व्यवस्था कर सके न्यू नेकलेस का. मीनवाइल इस बीच में they were successful in searching a similar necklace made up of diamond. That new necklace cost 36,000 francs. एक बहुत बड़ा अमाउंट था ये. कैसे पैसा की व्यवस्था की? लास्ट पार्ट में है. Husband had inherited 18,000 from his parental family. 18,000 फ्रैंक्स तो व्यवस्था हो गया घर में ही. उसके पापा छोड़कर गए थे. बाकी मनी जो है बोरो करना पड़ा. किसको? हिल्डा को, लोएसल को. So they were able to buy the necklace, diamond necklace, from the inherited money and borrowed money. They had to take heavy loan from usurers. साहूकारों से heavy loan लेना पड़ा. It took 10 years to pay back the debt. कर्ज चुकाने में कितना साल लग गया? 10 साल लग गया. They had to live very hard life, harsh life, a poverty-stricken life. They had to shift to an apartment having small room. They had to remove the maid also. And in these years, their life changed drastically. उसका जीवन जो है संपूर्णतः बदल गया था. And now she had to cook herself. अपने से खाना बनाना पड़ता था. Wash her clothes. That means having a very hard life. और उसके हस्बैंड को मल्टीपल जॉब्स, विभिन्न प्रकार के जॉब करने पड़ते थे अपार्ट फ्रॉम हिज ड्यूटी, हिज ऑफिस वर्क, in order to collect the amount, to pay the debt. So enduring and living hard life, that changed her appearance. किसके appearance को बदल दिया? Matilda. Now she was having a very rough look. She had become very rough and harsh, leading a very poor life, hard life. She looked aged. So hard life का effect उसके health पे भी पड़ा. किसके health पर? Matilda. Now she looked no more charming. She looked aged. She looked ugly. She looked like a strong woman of poor household. एक गरीब घर की महिला अब दिखती थी वो. एक दिन जो है वो जेनी फ्रॉस्टियर की मुलाकात होती है. She saw her on the street. वो सोची कि भाई अब तो पे कर चुके हैं तो क्या शर्म और क्या लज्जा, हम इसको बताएंगे. नेकलेस के बारे में इसको ट्रुथ बताते हैं. जब पहले अप्रोच की तो वो पहचान ही नहीं पाई. कौन? मैडम फ्रॉस्टियर. Because now she was having a very different look. She now looked aged. Charm had lost. लेकिन जब यह संबोधित की जेनी के नाम से तो पहचान गई. क्या है? मटिल्डा.
आश्चर्य पड़ गई, शॉक थी उसके चेहरे को देख करके। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या मामला है? मैडम फ्रॉस्टियर वॉज शॉक्ड एंड स्टन्ड टू सी हर rough appearance. Moreover, on learning the truth of necklace, Jenny Frostier told that it was a fake one. ये बताई उसको कि it is all because of you. तुम्हारे वजह से सब हुआ है। बोलो मेरे वजह से? How I am to be blamed? She was shocked. बोले you know I had borrowed a necklace from you, diamond necklace that I had lost. मैं खो दिया था. And I had to buy, taking loan, heavy loan, and to pay the debt I had to spend a hard and harsh life 10 years. तो जेनी फ्रॉस्टियर उसको इन्फॉर्म करती है that it was a fake one. That necklace was not a diamond necklace. It was a replica. एक duplicate necklace था. And you spoiled 10 years of your life. You mean to say that you have given me a ट्रू डायमंड नेकलेस, रियल डायमंड नेकलेस? 500 फ्रैंक से भी ज्यादा नहीं था उसका वर्थ। कौन बतलाती है? और कहानी यहाँ समाप्त हो जाता है। लिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट मैसेज, वन शुड नॉट क्रेव फॉर लग्जरीज। एक व्यक्ति को अपने दायरे में रहना चाहिए, लग्जरीज के पीछे क्रेव नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट लीड अ फेक लाइफ and be content whatever God has given. झूठा डिजायर, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़ी इच्छाएं, that leads to trouble, that leads to unhappiness. Moreover, we should never hide the truth. अगर ये ट्रूथ कर दी होती तो शायद ये जीवन उसका 10 साल बर्बाद नहीं होता। So last message that we should never hide the truth. सच भी छिपाना नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में किसी के सामने, because that has a very bad impact. बुरा परिणाम हो सकता है।